Hello students, and this is Brijesh Singh, and this is a continuation of unit 3rd, the first topic, computation of income under the head of salary. And that particular session I discussed with your salaries, meaning of salaries, perquisites, and profit in lieu of salaries. All these things comes under the section 17. So I hope you understand which I discussed with you in my previous lectures. So I'm going to discuss now with you the salary and requisites and the profit in lieu. क्या होता है, किस तरीके से इनको इनकम माना जाता है, क्या होता है. So this is the salary, requisites and salary, and profit in lieu of salary, section 17, under the term. And the meaning of salary, term salary, the purpose for the purpose of income tax, and is much wider than what is normally. So basically, to understand the meaning of the salary, the term salary for the purpose of income tax under the section Act 1961 will include both monetary payments on the basis of salary, bonus, commission, allowances, etc., as well as non-monetary facilities like house recommendation, medical facilities, interest-free loans, etc. तो ये सब चीजें जो हैं वो सैलरी में आती हैं. मीन्स किसी भी व्यक्ति को जो भी एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को पे किया जाता है, वट एवर इन टर्म्स ऑफ सैलरी, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पेमेंट, यानी कि जो उसको पेमेंट मिलता है, जैसे कि सैलरी जिसको हम कहते हैं, बेसिस या बोनस या कमीशन और अलाउंसेस. इसके अलावा नॉन मॉनेटरी भी कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि हाउस अकोमोडेशन मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, है ना. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 which define the term salary, and it is an inclusive definition and includes the monetary as well as non monetary items. तो सेक्शन 17 डिफाइन करता है सैलरी को. तो जहां पर डिफाइन ऑफ सैलरी की बात आती है, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, any wages, any annuity or pension, any gratuity, any fee, commission, perquisite or profit in lieu, or the addition to any salary or wages, जो भी चीजें आपको मिलती हैं, any advance of salary, any payment received in respect of any periods of leave and not availed by him, or leave salary or any leave encashment, and the portion of the annual accretion in any previous year to the balance at the credit of an employees participating in recognizing the provident funds to the extent and it is taxable, and the transferred balance and it recognized provident fund and in the extent it is taxable. So, and contribution made by the central government or any other employer in the previous year to the account of employee under the pension scheme, it is known as the NPS. तो कोई भी पैसा जो भी ट्रांसफर किया जा रहा है वो सब इनकम के रूप में जो है आपके जुड़ता है. ठीक है, तो ये सब क्या है, सैलरी कहलाती हैं. जो भी पैसा आपको चाहे वेजेस के, पेंशन के, या ग्रेच्युटी या फी, कमीशन, या किसी भी फॉर्म में अगर आपको मिलता है तो वो कमीशन या जो भी चीजें हैं उनको हम सैलरी के रूप में कह सकते हैं. तो ये इस तरीके से जो चीजें हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर आ जाती हैं. तो ये सैलरी है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द वेजेस. वेजेस क्या है? तो वेजेस बेसिकली इन कॉमन पैरेलल अगर हम बात करें तो वेजेस मींस फिक्स रेगुलर पेमेंट अर्न फॉर वर्क और सर्विस. कोई भी फिक्स रेगुलर पेमेंट जो आपको मिलती है वो जो है वेज के रूप में कहलाती है. द वर्ड वेजेस, सैलरी और बेसिक सैलरी आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. इन सबको एक ही जैसा हम यूज करते हैं, चाहे वो वेजेस हो, सैलरी या बेसिक सैलरी के रूप में हम इसको देख सकते हैं. So moreover, the payment in the form of bonus, allowance, etc., made to the employee are also included within the salary. Now the second thing is profit in lieu of salary क्या है? So it includes the following things. Profit in lieu of salary, basically the amount of any compensation due to or received by an assessee from his employer or former employer at और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, जो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की बात होती है वो बेसिकली क्या है, कोई भी कंपनसेशन जो
एक पार्ट उस किसी एम्प्लॉय ने रिसीव किया है इन द टर्मिनेशन ऑफ द हिज एम्प्लॉयमेंट, या कनेक्शन जो टर्मिनेट हो जाता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच का, तो तब उसको जो बेनिफिट मिलते हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी के रूप में देखते हैं. अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव बाय NISSC फ्रॉम हिज employer or former employer at or any connection with the modification of the term and condition employment, etc. Any payment due or received by an SSC from his employer or former employer from the provident or other fund, the sum of allocated by the pay of bonus on such policy. तो जो भी चीजें उसको मिलती हैं वो प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी है. Any sum received by an SSC under the key man insurance policy, including the sum allocated by way of bonus on such policy, any amount, whether it is lump sum or otherwise due to the SSC or received by him from any person. तो ये सब क्या है, प्रॉफिट एंड लीव इसको कहलाता है. इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अदर थिंग्स, एनी अदर सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर ऑफ द एम्प्लॉयर. अब नाउ अगर हम बात करें कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इन ग्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि आजकल क्या है ग्रेड सिस्टम भी चल रहा था, तो एन एम्प्लॉय मे बी एंटाइटल टू रिसीव सैलरी इन ग्रेड सिस्टम. अंडर दिस सिस्टम नॉर्मल एनुअल इंक्रीमेंट्स टू बी गिवन टू द एम्प्लॉय आर ऑलरेडी फिक्स इन ग्रेड. तो ये ग्रेड में फिक्स होते हैं, हर साल उसको एक एक जो इंक्रीमेंट है वो मिलता रहता है. जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, इफ एन एम्प्लॉय ज्वाइन द सर्विसेज ऑन 1st June 2010 and it is placed in grade system 10,000 as 1,000, then 15,000, then 22,000, then 25,000, then his salary will be on 1st June 2010 will be 10,000 per month, and thereafter his salary will be increases by rupees 11,000, then with effect of 31st March 11 until reach 15,000. तो इस तरीके से हर साल उसकी 1,000 रुपये सैलरी बढ़ेगी. जब 15,000 पहुंचेगी तो फिर उसकी 2,000 हर साल उसकी बढ़ेगी. तो इस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम होता है until he reaches the 25,000, और फिर लास्ट में वो इतने पर पहुंच जाता है. In certain cases, employee join in his grading grade at a salary between the grade, and in that case, salary will be an annual increase in the aforesaid manner, and the only difference is that his initial salary would be different amount than start of grade. Like if an employee join the services of grade this, so then at the salary of this 13,000, his salary from this will be 13,000 after. तो ये बहुत सारी चीजें हैं. अब इसमें क्या है कि क्या क्या चीजें टैक्सेबल होती हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है. तो जैसे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी है, ये कंप्लीटली टैक्सेबल होगी. DA या DP जो होता है, डियरेंस पे होती है, वो भी आपके टैक्सेबल होता है 100%. एडवांस सैलरी अगर आपको मिली है इन टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, जिस साल आपको मिलेगा उसमें आपको टैक्सेबल होगा. एरियर ऑफ सैलरी है वो आपका टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट इफ नॉट टैक्स इन ड्यू बेसिस अर्लियर. लीव सैलरी अगर आपको मिलती है, यानी कि EL जिसको हम कहते हैं, अर्न लीव का पैसा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है गवर्नमेंट इसको देती है. तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA में ये आता है बेसिकली. और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ओनली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फुल एग्जेम्प्ट. ठीक है, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है फ्रॉम द टैक्स. जो लीव इनकेसमेंट आपको मिलता है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. ये 3 कंडीशन होंगी, उनमें से जो भी कम होगा वो आपका एग्जेम्प्टेड होगा. कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ अर्न लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय and retirement which cannot be exceed of 30 days average salary and every year completed of in services. 10 months of average salary या amount specified by the central government is 3 lakh, और लीव इनकेसमेंट एक्चुअली रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. ये इनमें से जो भी कम होगा वो आपको जो है इसमें जो है टैक्स फ्री माना जाता है. ठीक है, नोट यहाँ पर हमें देखना है कि एवरेज सैलरी मीन्स एवरेज सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिटायरमेंट. ठीक है, जो रिटायरमेंट के है उससे पिछले 10 महीनों में क्या उसको मिला है. फ्रैक्शन ऑफ नंबर से आर कंप्लीटली इग्नोर्ड, ये हमें इग्नोर करना है. इफ एम्प्लॉय रेंडर्ड सर्विस ऑफ 5 or 10 months इट विल बी टेकन एज अ 5. ठीक है, लीव सैलरी ड्यूरिंग द पीरियड सर्विस इज टैक्सेबल इन ऑल केसेस. इसके अलावा जो वेयर एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर cash equivalent to his earned leave and also received from the present employer leave encashment, the maximum limit shall be reduced by the amount of previously.
Leave encashment paid to the legal heirs and deceased employee and at the time of his or her death is not taxable as salary. Meaning of salary, basic salary, conditional DA and commission of etc. Now इसके अलावा क्या आता है? Salary in lieu of notice अगर आपको मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा. फी एंड कमीशन कोई भी है तो टैक्सेबल होगा. बोनस आपको मिला है तो टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस इफ नॉट टैक्स्ड अर्लियर ऑन द ड्यू बेसिस. अगर आपको पहले टैक्स नहीं लगा है तो आपको ये टैक्स लगेगा. नाउ द ग्रेच्युटी क्या होती है? ग्रेच्युटी के बारे में यहाँ समझना बहुत जरूरी है. तो बेसिकली ग्रेच्युटी क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेक्शन 10(10) फर्स्ट में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बट नॉट एम्प्लॉइज ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. ठीक है, कोई भी ग्रेच्युटी सेक्शन 10(10)(I) में जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी एम्प्लॉय हो उसको फुल्ली एग्जम्प्टेड कहलाती है. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है कवर्ड बाय द पोगा सेक्शन 1972 है ना. तो एक्ट 1972 और सेक्शन 10(10)(2) में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड. ठीक है, तो फिर अगर ये लगता है तो यहाँ पर जो है आपका इन तीनों में से जो भी लिस्ट होगा वो जो है वो एग्जेम्प्टेड होता है. ठीक है, तो 15 days सैलरी लास्ट वन ऑफ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सैलरी इन एक्सेस ऑफ 6 months. 20 lakhs in case of 10 lakhs to 20 lakhs by the payment of gratuity amendment act 2018. ठीक है, 18 में इसको 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है. ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड इन तीनों में से जो भी कम होगा वो आपका एग्जेम्प्टेड होगा. सैलरी मींस बेसिक सैलरी प्लस डीए जो है वो माना जाता है हर जगह. ये भी आपको समझना होगा. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कोई है नॉट कवर्ड बाई पोगा, अगर वो कवर्ड नहीं होता है पोगा से, यानी कि पेंशन जो है कमिटेड नहीं होती है, तो ग्रेच्युटी 10(10) थर्ड में exempt from the tax extent of the least 20 lakhs increased from 10 lakh to 20 lakhs in a parliament and half month average salary for each completed year of services या gratuity actually receive. इन तीनों में से जो भी होगा वो आपका exempt हो जाएगा. ठीक है, तो सैलरी मीन्स आपको पता है यहाँ पे बेसिक सैलरी यानी कि एवरेज ऑफ 10 months प्लस DA if provided by the employment or commission as per the turnover received. And average salary for this purpose is to be calculated on the basis of average salary drawn during the period of 10 months immediately preceding of the month in which the employment is retired. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एम्प्लॉय जो भी होगा एम्प्लॉयज ऑफ द सीजनल एस्टेब्लिशमेंट इंस्टेड ऑफ 15 days 7 days सैलरीज उसको माना जाता है. पीस रेटेड एम्प्लॉयज अगर हम देखें तो डेली वेजेस शैल बी कम्यूटेड एंड कंप्यूटेड ऑन द एवरेज ऑफ द टोटल वेजेस रिसीव्ड बाय हिम. ठीक है, इसके अलावा जो ग्रेच्युटी है वेयर एन एम्प्लॉय रिसीव ग्रेच्युटी फ्रॉम 2 or more employer in the same previous year then the exemption shall not be exceed the maximum limit of 20 lakhs. ठीक है, अगर चाहे वो 2 एम्प्लॉयर से भी अगर उसको ग्रेच्युटी मिली है वो भी 20 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए. तो जो भी 20 लाख से ऊपर जाएगा तो वो टैक्सेबल होगा. ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर आफ्टर द डेथ. तो इफ ग्रेच्युटी बिकम ड्यू ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ excess, it is taxable in hands of SSE. And if the gratuity become due on receipt after the death of employee, it is not taxable in hands of employee. It is also not taxable hands of legal heirs and etc. Now moves to the pension. Pension क्या है? Pension is also taxable under the Income Tax Act. तो committed pension और uncommitted pension दो तरह की पेंशन यहाँ पर होती है. Uncommitted pension is taxable in all cases. अनकमिटेड पेंशन जो होती है वो हमेशा टैक्सेबल होती है और कमिटेड पेंशन जो होती है इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. ठीक है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. इन केस ऑफ द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कमिटेड पेंशन इज एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ गिवन बिलो. ठीक है, अगर कमिटेड पेंशन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है किसी भी टाइप का गवर्नमेंट है तो वो एग्जेम्प्टेड होगा. लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके 1/3 ऑफ नॉर्मल पेंशन इज एग्जेम्प्टेड. 1/3 जो होगी वो एग्जेम्प्टेड होगी इफ द एम्प्लॉय रिसीव्ड ग्रेच्युटी, अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है तो. एंड 1/2 ऑफ द नॉर्मल पेंशन इज एग्जेम्प्टेड, और जो 1/2 होगी एग्जेम्प्टेड होगी इफ एम्प्लॉय डज नॉट गेट रिसीव ग्रेच्युटी. अगर उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो उसका जो 1/2 है यानी कि 50% जो है वो एग्जेम्प्टेड होगा और 50% जो है टैक्सेबल होगा. लेकिन ग्रेच्युटी मिलती है तो उसका 1/3 ही जो है एग्जेम्प्टेड होगा. Pension under the new pension scheme in the case of government employee or the any other employee joining on or after January 1st, 2004 as per the section 80 CC D1
If the individual employed by the central government, state government, and after the first January 2004 has paid or deposited by any amount in the previous year is his account of NPS, deduction of such amount cannot be exceed of 10% of salary. But according to new provisions, the date of joining of service being 1st January 2004 is not applicable to private sectors. Employer's contribution is first included in the salary, then the deduction is available to the extent of 14% of the salary under section 80 CC D 2 में जो है ये आपको डिडक्ट हो जाती है. Employees contribution in deductible under the section 10 80 CC D 1 to the extent of 10% of salary. ठीक है, 80 CC D 1 में केवल 10% of salary ही आपकी यहाँ पर आ सकती है. When pension is received out of the aforesaid amount, it will be taxable in the year of receipt. ठीक है, अगर पेंशन रिसिप्ट हो रही है आउट ऑफ द अफोरसेड अमाउंट इट विल बी टैक्सेबल. ठीक है, ये भी ध्यान देना है. In the year of receipt, employer contribution toward NPS is not considered. Employer contribution toward NPS is not considered for the monetary ceiling 1.5 lakh. If pension is received under the United Nations organization UNO by its employee or his family member is not chargeable to tax. Family pension received by family members or armed forces is fully exempted. ठीक है, जो आर्म फोर्सेस हैं उनको फुल्ली एग्जेम्प्टेड है. फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय अदर एम्प्लॉइज नॉट कवर्ड आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉइज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द रिसीव्ड अंडर द अदर सोर्सेज गिविंग एंड 15,000 or 1/3 of such pension. Now the annuity from employer taxable होती है एज सैलरी. जो एन्युटी आपको मिलेगी वो पूरी टैक्सेबल होगी. एनुअल एक्रेशन टू द क्रेडिट बैलेंस इज RBF. तो excess of the employer contribution over 12% of salary is taxable. ठीक है, तो अगर कोई एनुअल क्रिएशन होता है और 12% से ज़्यादा होता है तो वो टैक्सेबल होता है. एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट ओवर नोटिफाइड इंटरेस्ट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 9.5%. रिटेंचमेंट कंपनसेशन अगर आपको मिलता है तो रिटेंचमेंट जो है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है. टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड. अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड of ₹5 lakh, amount calculated in accordance with the section 25F(b) of the Industrial Dispute Act 1947, and that 15 days average pay for each of completed year. Average pay means यहाँ पर in case of monthly payment, average of the last 3 months. In case of weekly payment, average last 4 completed weeks. In case of daily, तो last 12 full working days जो average है उसको यहाँ पर लिया जाएगा. Then compensation received under the voluntary retirement scheme VRS अगर कोई लेता है तो उसका compensation के साथ क्या होता है. It applies to an employees of the company or the authority as the case may be, and who has completed 10 years of services or completed 40 years of age. अगर किसी व्यक्ति को 10 साल की सर्विस हो गई है या वो अपने एज के 40 साल पूरे कर चुका है तो अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड अमाउंट इज पेड बाय द गवर्नमेंट इट इज 5 lakh. On the condition is that the amount payable on account of voluntary retirement or voluntary separation of the employees does not exceed the full equivalent of 3 months salary and each completed year of services. To see a salary at the time of retirement multiplied by the balance months left before the stated age retirement of superannuation whichever is more relief under section 89 is not available. ठीक है, तो ये कंपनसेशन की बात है. अगर कोई व्यक्ति है तो अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड या अमाउंट इस पे गवर्नमेंट इट इज 5 lakh है ना, या जो भी ये जो है कंडीशन है आपकी. तो वॉलंटरी रिटायरमेंट की कंडीशन है सेपरेट होती है. डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू 3 months ऑफ सैलरी. ठीक है, ये भी देखना है. या 89 का उसको रिलीफ ना मिल रहा हो तो वो इसमें नहीं आएगा. सैलरी फ्रॉम UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में नॉट चार्जेबल टू टैक्स. किसी को मिलती है तो वो चार्जेबल नहीं होगी. तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स अबाउट द सैलरी, requisites and the property and dues. So thank you very much.